اگر بائیں نے کوئی چیز فروخت کی، غلام فروخت کیا اور کہا اس شرط کے ساتھ غلام بیچ رہا ہوں، یہ غلام 1 مہینے تک میری خدمت کرے گا، تو یہ اس بیع کے ساتھ ایسی شرط ہے جو شرط تقاضے کے خلاف ہونا تو یہ چاہیے غلام بیچے اور اس کے حوالے کرے، سپرد کریں، تسلیم کریں مشتری کے، لیکن بھائی یہ نہ کر 1 مہینہ مزید رکھنا چاہتا اپنے پاس تاکہ وہ خدمت لے، اس طرح کی فاسد ہے۔ کیا کچھ بول رہے ہو بھائی؟ بات یہ چل رہی ہے، ایک اصول پیچھے سے آ رہا ہے کہ بیع میں اگر شرط فاسد ہو تو بیع فاسد ہو جائے گی۔ شرط فاسد سے مراد یہ ہے کہ ایسی شرط جو عقد کے تقاضے کے خلاف ہو اور اس میں متعاقدین میں سے کسی ایک کا یا معقود علیہ کا فائدہ ہو، اس کی منفعت ہو، تو یہ شرط فاسد ہے اور شرط فاسد سے بیع فاسد ہو جاتی ہے۔ جانتا ہوں پہلے سے اس پر کئی مثالیں گزری اور ایک مثال یہ دے رہے ہیں کہ اگر بائع نے غلام فروخت کیا، شرط یہ رکھی کہ بائع اس سے 1 مہینہ خدمت لے گا، یا مکان فروخت کیا اور کہا کہ ابھی ہم 1 مہینے یا 2 مہینے اس میں رہیں گے، یا کسی نے کوئی چیز فروخت کی اور مشتری سے یہ کہا کہ شرط کے ساتھ تمہارے ہاتھ فروخت کروں گا کہ تم مجھے اتنے روپے قرض دو، یا یہ کہا کہ تم مجھے اتنے روپے میں سے ہدیہ کرو، تو یہ سب وہ شرطیں ہیں جو تقاضے کے خلاف ہے، اس میں بائع کی منفعت ہے، اس لیے یہ شرط فاسد ہے اور اس سے فاسد ہو جائے گی۔ یہ جو باتیں آئی اس میں کیا دقت ہے بھائی؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ مبشر بھائی مائک بند کر، آ رہی ہے، مبشر کا مائک کھلا ہوا ہے۔ خاموش جیسے لگتا ہے کچھ انسانی پوچھ رہے ہیں بار بار کہ آواز جا رہی کہ نہیں، کیا دقت ہے؟ تو بولنا نہیں چاہیے۔ ابھی تک صرف 37-38 لڑکے ہیں۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ بیع فاسد کے بیع کے اندر اگر کوئی ایسی شرط لگا دی جائے جو شرط عقد بیع کے تقاضے کے خلاف ہو اور اس میں متعاقدین میں سے کسی ایک کا یا معقود علیہ کا فائدہ ہو، یہ شرط فاسد کہلاتی ہے اور شرط فاسد سے بیع فاسد ہو جاتی ہے۔ یہاں جو مثالیں دی کہ ایک شخص نے اپنا غلام فروخت کیا ہے اور بائع نے یہ شرط لگائی کہ اس غلام سے ہم فائدہ اٹھائیں گے، 1 مہینہ خدمت لیں گے، یا مکان فروخت کیا اور بائع نے یہ کہا کہ اس مکان کو ہم 1 مہینے کے بعد حوالے کریں گے، جب تک ابھی میں اس میں رہوں گا، یا بائع نے یہ کہا کہ اس شرط کے ساتھ یہ چیز میں بیچ رہا ہوں کہ مشتری مجھے اتنے روپے اتنے درہم قرض دے یا ہبہ دے یا ہبہ ہدیہ کر دے، تو یہ وہ شرائط ہیں جو شرط فاسد کے دائرے میں ہیں، اس لیے بیع فاسد ہو جائے گی، جائز نہیں۔ یہ جو شرطیں لگائی گئی ہیں حدیث میں، 2 حدیثیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے
یہ دونوں ممنوع ہیں۔ صاحب ہدایت کہہ رہے پہلی حدیث یہ ہے نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعین و سلفین، ایسی بے سے منع فرمایا جس میں کہ قرض کی شرط ہو۔ نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیعین و سلفین، سلف کہتے ہیں قرض کو۔ مثلاً یہ کہا کہ یہ زمین میں تمہارے ہاتھ میں دوں گا، تم کو بیچ دوں گا، یا یہ دکان میں تمہارے ہاتھ فروخت دوں گا، شرط یہ ہے کہ تم ہمیں 2 لاکھ روپے قرض بھی دو۔ تو دکان تو فروخت کر رہے پائے اور ساتھ ساتھ قرض بھی مانگ رہے، تو یہ شرط حدیث کی روح سے ممنوع ہے، کیونکہ یہ شرط فاسد ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی شرط نہ ہو، اور دوسری بات یہ کہ اس میں کسی فائدہ نہ ہو یا بائع کا فائدہ۔ دوسری روایت اس میں یہ آئی ہے کہ نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صفقتین فی صفقتین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاملے میں 2 معاملے کرنے سے منع فرمایا۔ وہ کیسے ہیں؟ یہاں کہہ رہے کہ اگر یہ بھائی یہ کہہ رہا غلام فروخت کر رہا تمہارے ہاتھ اس شرط کے ساتھ یہ غلام مجھے میری خدمت کرے گا مزید 1 مہینہ، تو سوال یہ کہ یہ ان کی خدمت جو کرے گا غلام کس بنیاد پر، جبکہ وہ بیچ چکا ہے، ثمن پا چکا ہے، ثمن ابھی لے بھی رہا ہے، تو یہ خدمت کیوں؟ 2 ہی شکل ہوگی، خدمت یا تو عوض میں ہو، یعنی مان لے 1 مہینہ خدمت کریں گے تو 2000 روپے مان لیا جائے، اس کا کرایہ جوڑ دیا جائے، یا یہ کہ بغیر اجرت کے ہو خدمت کرے گا۔ تو اگر اجرت کے ساتھ کرے گا تو اجارہ ہے، بلا اجرت اگر غلام خدمت کرے گا تو اعارہ ہے، عاریت ہے۔ معاملہ ہوا تھا بیع کا، اب بیع میں یا تو اجارہ آ رہا ہے یا عاریت آ رہی ہے، تو یہ صفقتین ہو گئے، بیع اور اس کے ساتھ اجارہ یا عاریت، یہ 2 معاملے ہو گئے۔ ایک معاملہ ہوا تھا بیع کا، اس میں مزید ایک معاملہ اور بڑھ گیا، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بیع سے منع فرمایا۔ نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صفقتین فی صفقتین کا یہی مفہوم ہے۔ جتنی بات عبارت میں بیان کی گئی ہے وہ تفصیل میں نے بتا دی، اب صرف ترجمہ دیکھ لیجیے۔ لأنه شرط لا يقتضي لا، اس لیے کہ یہ باتیں کہنا، یا دیکھ لو وہاں سے وَكَذَلِكَ، اسی طرح بیع فاسد ہو جائے گی اگر بائع غلام کو فروخت کرے اس شرط کے ساتھ کہ بائع غلام سے 1 مہینہ خدمت لے۔ 1 مہینہ ایک تحدید نہیں ہے، 2 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، 15 دن بھی ہو سکتے ہیں وغیرہ۔ اور دارن یا گھر فروخت کیا اس شرط کے ساتھ کہ بائع اس میں رہے گا، یا یہ شرط لگائی بائع نے کہ مشتری اس کو قرض دے کچھ درہم، یا یہ شرط لگائی کہ مشتری اس کو ہدیہ کرے، تو کریں لِأَنَّهُ شرط لا يقتضيه العقد، یہ ایسی شرط ہے جو عقد کے تقاضے کے مطابق نہیں ہے، وَفِيهَا مَنْفَعَةٌ لِأَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، اور اس میں دونوں میں سے کسی ایک کا فائدہ یعنی بائع کا۔ ایک تو یہ تشریحی، اب آگے کریں وَلِأَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ، اور اس لیے بھی ممنوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بیع سے منع فرمایا جس میں قرض کی شرط ہو، سلف کہتے ہیں قرض کو۔ وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْخِدْمَةُ وَالسُّكْنَى يُقَابِلُهُمَا شَيْءٌ مِّنَ الثَّمَنِ يَكُونُ إِجَارَةً فِي بَيْعٍ، اور اگر یہ خدمت اور گھر میں رہنا کسی ثمن کے عوض میں ہو، يُقَابِلُهُ شَيْءٌ مِّنَ الثَّمَنِ، کوئی ثمن کے مقابلے میں ہو، يَكُونُ إِجَارَةً فِي الْبَيْعِ، تو بیع میں یہ اجارہ ہو جائے گا۔ وَلَوْ كَانَ لَا يُقَابِلُهُمَا، اور اگر نہ ہو ان کے مقابلے میں کچھ بھی، يَكُونُ إِعَارَةً فِي بَيْعٍ، تو بیع میں یہ اعارہ ہے، عاریت ہے۔ وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم عن صفقتین فی صفقۃ، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاملے میں
दो मामले करने से मना फरमाया। बात समझ में आई? जी बहुत आसान मसला है। जी जी समझ में आई। चलो अब आगे हमारा भाई सलम की तारीफ होते सलफ का सलफ भाई सलफ सलफ भाई सलफ नहीं है, सलफ कहते हैं कर्ज को। कर्ज जी। कर्ज यानी ऐसी बै कर रहे हैं जिसमें बाय मुश्तरी से कर्ज मांगे, शर्त लगा दे कि तुम्हारे हाथ इस शर्त के साथ बेचूंगा कि तुम मुझे इतने रुपए कर्ज दो। जी। हाँ हजरत यहाँ पे दो इल्लत आई है, लिअन्नहु अन बैइन व सल्फिन, और दूसरी इल्लत आगे जो आई है कि इजारा होगा या इयारा होगा। ये हाँ। दोनों इल्लत किस बात, ये अकली और नकली दोनों दलीलें अलग अलग। एक दलील यह है नहा अन बैइन व सलफ, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन बैइन व सलफिन। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया ऐसी बै से जिसमें कर्ज की शर्त हो, जो कर्ज के साथ हो यानी कर्ज की शर्त हो। दूसरी दलील कह रहे हैं कि नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सफ़क़तैन फी सफ़क़तिन, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया दो अक़्द करने से एक अक़्द में। ये जो दो अक़्द कैसे हो जाएगा, बै तो हो ही रही थी, अब मजीद एक महीना उसमें रहेंगे मकान में या गुलाम से खिदमत लेंगे, ये सफ़क़तैन हो गए और ये हदीस की रूह से मना है। जी हजरत। और कोई इश्काल है? अगर दोनों राजी हो मौलाना तो राजी हो, लेकिन शरीयत राजी नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी नहीं। समझ में है? नहीं समझ में है? हमारी रजामंदी काफी नहीं। अगर हमारी रजामंदी हो इंसान की तो फिर शरीयत की क्या जरूरत है? शरीयत क्यों गाइड करे? शरीयत इसीलिए गाइड करती है कि हमारी राजी न हो बल्कि रजा अल्लाह और उसके रसूल की हो। मौलाना साहब, हाँ अगर किसी ने गुलाम खरीद लिया, उसका फरोख्त कर दिया, पैसा उससे वसूल कर लिया, फिर वो कह रहा है कि हमें 1 महीने की जरूरत है और इसका मतलब बै हो गया मुकम्मल, उसके बाद कह रहा है कि 2000 रुपया ले लीजिए, 1 महीना हमारे पास रहने दीजिए, तो ये जायज है? तो बै मुकम्मल होने के बाद फिर से बै 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 के अंदर ये सब शर्त न हो। बै से खालिस जब बै हो गई, मबी और समन दोनों एक दूसरे को हवाले हो गए। अब कोई किसी से अलग से कर्ज लेता है तो उस पर कोई रोक नहीं है। बै के अंदर ये सब मुआहदे के अंदर नहीं होना चाहिए। जी। यानी ऐसी अगर दुकान का मामला हो मौलाना, मतलब पैसे वैसे सब आने के बाद हम फिर दोबारा उससे कहें भी हमें दुकान दे दो, आप हमसे पैसे ले लेना किराए के, इसके हमें 1-2 महीने के लिए चाहिए। हाँ तो बाद में कर सकते हैं, उसमें शर्त लगाना सही नहीं। सबब मुनाज़ात की बुनियाद पर बै फासिद हो जाती है। जिस बै में मुनाज़ात की डर होती है तो बै फासिद हो जाती है। बै में ऐसी जहालत जो निज़ा का सबब बन जाए वो फासिद। लेकिन अगर जो है मुश्तरी राजी हो तो फिर मतलब फसाद खत्म हो जाएगा। मुश्तरी कैसे राजी है? मसलन कोई चीज बताइए, ऐसी मिसाल देकर। ये जहालत भी है और मुश्तरी राजी भी है, कोई बताइए आपके ज़हन में हो तो बताइए, हमको भी समझ में आए। मिसाल नहीं है और ज़हन में नहीं है अभी, जब ज़हन में आ जाए तो बताना। जी जब कोई ऐसी चीज हजरत हाँ कल पढ़े थे, बहुत रहा था इसे। कल पढ़े थे बैन समा की तारीफ एक बार, और उसमें बैन सबक में बैन समा की तारीफ समा का मतलब ये है
बाय गुलाम बेच रहा है। हो सकता है, जरूरी नहीं है। ऐसे आदमी के यहाँ जैसे सबब तो जिनको जिनके बारे में मालूम है कि ये गुलाम को आजाद करेगा, नहीं बहुत ऐसा आता तो है। ऐसी बै को लेकिन मोहन ने बताया मुझे गुलाम को बेचना ये नसमा है, ये नसमा की बै है। मुश्तरी के हाथ गुलाम को बेच रहा है, ये समझते हुए कि मुश्तरी इसको आजाद करेगा, क्योंकि उसको हो सकता है मुश्तरी का इंदिया और उनका ख्याल मालूम हो गया था, और वो आजाद करने की कई शक्ल हो सकता है कि आजाद करने का उसको जज्बा हो सदका की नीयत से। ये भी हो सकता है कि किसी कफारे के लिए अदा करना चाह रहा, उन पर कोई कफारा वाजिब हो गया था, अब वो गुलाम ढूंढ रहा था, बाय को ये खबर हुई, गुलाम बाय जान रहा था ये कफारे के लिए गुलाम आजाद करना चाहता है, बाय ने उसको इस शर्त के साथ बेच दिया कि हम देंगे तुमको गुलाम, शर्त ये कि तुम उसको आजाद कर दो, क्योंकि बाय को पहले ही से मालूम था कि मुश्तरी गुलाम आजाद करने के लिए खरीद रहा है। अब मजीद फिर बाय उसमें ये बात कर दे कि तुम इसको आजाद करोगे तो मैं दे दूंगा तुमको, तुम्हारे हाथ फरोख्त करूंगा। इस तरह की बै को बै नसमा कहते हैं। अब बात ध्यान में आई कि नहीं? आज भी नहीं है, हजरत अगर आज आए, इसलिए कि कल खाली जहन बैठे हो। जी जी, अगर मुश्तरी अगर खरीद कर नहीं आजाद मुश्तरी अगर खरीद लिया बाई से और बाई को मालूम है कि ये आजाद करेगा, जी आजाद वो नहीं किया, अगर नहीं दिल नहीं कर रहा आजाद करने का, तो फिर बै हो जाएगा। बै तो हो गई, बेच दिया उसने, समझ ले लिया, बै हो गई, बै हो गई। इसी तरीके से हजरत अगर कोई शख्स गया दुकान पे और वो कह रहा है कि मस्जिद के लिए हमको पंखा लेना है, मसलन मस्जिद के लिए पंखा लेना है, तो मस्जिद के नाम पे जो है वो कुछ पैसे कम करके वो पंखा दे दिए उनको, फिर वो आके मतलब अपने घर में लगा लेते भी हो जाएगी क्या? तो ये भाई नसमा थोड़ा, वो मस्जिद में कहकर पंखा लिया तो गलत बयानी की, वो गुनाह हुआ, उसको गुनाह होगा। जी जी जी, मस्जिद के नाम पर उसने पंखा खरीद लिया, हालांकि वो मस्जिद में नहीं जा रहा, वह दाम कम कराया, ये गलत बयानी करके, तो ये उसको गुनाह होगा। हाँ ये हो सकता है कि मस्जिद के नाम पर पंखा ले लिया, हम मस्जिद में लगा रहे थे तो वहाँ मालूम हुआ कि पंखा लगने की कोई सबील नहीं निकली, अब उसको वो मस्जिद का फिर वजन है का सरकार से खरीद ले रहा है, तो वो एक अलग बात है। सुन रहे सर? जी ठीक है, अब आगे वाला मसला। लेकिन हजरत फिर बताना है जो अभी। गुलाम भेज हाँ हाफिज बात कर रहे? क्या हेलो, बात, तौसीफ माइक बंद करो यार, अगर सवाल नहीं कर रहे हो तो। क्या बात कर रहे हो भाई, बोलो। कौन हजरत, जैसे बाय जो है गुलाम जो बेच रहा है वो आजादी के एतबार से कि मतलब मुश्तरी खरीद के उसको आजाद कर देगा तो वो कम दाम में बेच रहा है, लेकिन मुश्तरी खरीद लिया उसके बाद वो नहीं बेच रहा तो मालूम चला कि वो नहीं बेच रहा, दाम उसका कुछ और होना चाहिए था। जरूरी नहीं है कि बाय कम दाम में बेच रहा हो, बाय जितना भी दाम है उसमें जो माकूल दाम है उसमें बेच रहा है, जरूरी नहीं है कि कम में बेच रहा है। अब अगर मान लिया जाए कि सोचा कि आजाद करेगा, सोचा हम भी हिस्सा ले लेते बाय ने ये कहा कि अगर तुम आजाद करोगे तो हम 1 लाख में दे देंगे, और अगर आजाद नहीं करोगे तो इसका दाम 2 लाख है, और उसने जो है 1 लाख में ये कहकर लिया कि हम आजाद करेंगे, आजाद किया नहीं, तो भाई तो अगरचे हो गई, लेकिन उसने गलत बयानी की, ये खरीद फरोख्त झूठी बात हुई, और इसको हिल्फ कहते हैं, झूठी कसम खाकर बै करना, और जिसमें झूठी कसम खाकर बै की जाती है
خرید فروخت کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس معاملے سے اس بے سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں، اس میں برکت نہیں ہوتی، نقصان اس کو یہی ہو جائے گا۔ بظاہر لگے گا کہ ہم کو 1 لاکھ کا فائدہ ہوا، لیکن وہ 1 لاکھ دوسری راہ سے چلا جائے گا، اس کو فائدہ ہونے کو نہیں ہے، برکت اس میں ختم ہو گئی۔ چلو بھائی، ومن باع عينا على ألا يسلم لرأس الشيء شهري فالبيع فاسد لأن الأجل في المبيع العين باطل ويكون شرطا فاسدا، وهذا لأن الأجل شرع ترفيها فيليق بالديون دون الأعيان۔ عین اور دین پہلے بھی بتایا، عین کہتے ہیں ایسی چیز کو جو معین ہو، جیسے یہ کتاب ہے وَلَهُ طُولٌ وَعَرْضٌ مُعَيَّن، تو یہ عین ہے، چشمہ ہے عین ہے، گھڑی ہے عین ہے، لیکن وہ چیز جو ذمے میں واجب ہو، ما هو يلزم فی الذمہ، جو چیز ذمے میں واجب ہو وہ عین نہیں، دین ہے۔ جیسے روپے پیسے یہ ذمے میں واجب ہوتے ہیں، ایک آدمی کتاب خرید رہا ہے 200 روپے میں ہدایہ شریف، اور تو کتاب تو عین ہے، لیکن جو روپے طے میں ہیں 200 روپے، یہ بائع کے مشتری کے ذمے واجب ہو گئے۔ 200 روپے اگر کتاب لے لی تو یہ دین ہے۔ عین اور دین متعین نہیں ہوتی ہے، عین معین شے کو کہتے ہیں۔ بس اگر کسی نے کوئی عین شے فروخت کر دیا، مثلا اس نے ایک گھڑی فروخت کر دی جو عین شے ہے، اور یہ شرط رکھی اللہ یسلم لراس الشهر، اب مہینہ آنے تک، جو مہینہ آنے والا ہے اس وقت تک نہیں سپرد کرے گا، فالبیع فاسد، بیع فاسد ہے۔ ایک الماری تھی، سوچ رہا کہ فروخت کرے، ٹرانسفر ہونے والا ہے، اور ان کو لیٹر مل گیا تھا، جانا ہے، بہت سے افسران کرتے ہیں، یا گھر میں معلومہ بیٹ تھا اس کو فروخت کرنا چاہ رہے ہیں، یہ عین شے، کہا کہ ہم بات ہو گئی، کام طے ہو گیا، اب بائع یہ شرط لگا رہا ہے کہ وہ ابھی نہیں دے گا، مہینہ جب آئے گا، جب ہماری ریٹائرمنٹ فلاں تاریخ کو ہم جائیں گے، اس دن الوداعی پروگرام ہے، اس دن ہم دیں گے۔ یہ ایسی شرط لگا رہا ہے جو شرط تقاضے کے خلاف ہے۔ حق کا تقاضا یہ ہے کہ جب بیوی تو آپ فوراً سامان جو عین سامان ہے وہ سپرد کیجیے، اور مشتری کے ذمہ واجب ہے کہ وہ سمن سپرد کرے۔ لأن الأجل في المبيع العين باطل، اس لیے کہ وہ مبیع جو عین ہو، متعین ہو، شے معین ہے، اس میں اجل ادھار ہونا یہ باطل چیز ہے، لہذا یہ شرط فاسد۔ ادھار کیوں کریں؟ وَهَذَا لِأَنَّ الْأَجَلَ شُرِعَ تَرْفِيهًا، یہ ادھار یہ مشروع ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے ترفیحاً، آسانی کے لیے، فَيَلِيقُ بِالدِّيُونِ، تو یہ دیون کے موافق، یہ آسانی دیون کے مطابق ہے، نہ کہ عیون کے مطابق۔ جب سامان آپ کو بیچنا، سامان موجود ہے، اب اس میں ادھار کی کوئی وجہ نہیں۔ ہاں ادھار سمن تو ہو سکتا ہے، کیونکہ سمن ابھی نہیں دے سکتے ہیں، ممکن ہے کہ آپ کو پیسے آنے والے ہیں، یا بینک میں پیسہ نہیں نکلا، آپ نے کہا کہ بس مہینے کی پہلی تاریخ کو میری تنخواہ بینک میں آ جائے گی، ہم دے دیں گے، ہم کو تو یہ 5 دن کے لیے مثلاً ادھار دے دو، تو اس کی تو گنجائش ہے، اور یہ ادھار مشروع ہے آسانی کے لیے، اور یہ آسانی کا مطلوب ہے دیون کے اندر، نہ کہ عیون میں، اس لیے عین شے کو ادھار رکھ کر فروخت کرنا، یہ کہنا، شرط لگا دینا کہ ہم بعد میں دیں گے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں بیع سلم میں اس کی گنجائش ہے،
फैसला ये है कि बाय के पास जो जरूरत है उसको मबी की, अब ये मुश्तरी बाय के पास मबी तो पैसे की जरूरत, पैसे भी दे लिया और उनको मुश्तरी ने पैसे दे दिए। अभी मुश्तरी को जो गल्ला चाहिए या कुछ चाहिए, आयने शय चाहिए, वो अभी तैयार नहीं है, खेत में है या कोई और बात है, तो वहां गुंजाइश है, सलम में गुंजाइश है कि मबी उदार हो और समन फौरी हो। इस्तिस्नाई शक्ल है, लेकिन आम शक्ल में अगर कोई शय आइन है उसको इस शर्त के साथ फरोख्त करना कि हम कुछ मुद्दत के बाद अदा करेंगे, ये देंगे, ये सही नहीं है, इससे बैع फासिद हो जाती है। अब चलो भाई आगे पढ़ो। हाँ, ये कौन भाग गया हो जी? 54 के बाद, 55 के बाद फिर 54 आए हो, ये तो गड़बड़ करते हो। 72 लड़कों में जो आमतौर पर आते हैं आज से 54। दफ्तर में ये सब नोट होता है, इसीलिए हम लोग हाजिरी नहीं ले रहे। बाद में किसी का इम्तिहान रुकेगा तो फिर मुझसे नहीं कहना कि मैं हाजिर था, इसलिए मैं वाकिफ नहीं। वो सब दफ्तर में वहाँ बाकायदा लगा हुआ नेट, वहाँ हम लोग हमारा बैठे हुए, सबकी हाजिरी रजिस्टर मेंटेन हो रही कि कितने लड़के हैं और सबके नाम आते हैं, सबके सब कुछ आ रहा है। दो लोग वहाँ बैठे हैं। हजरत हाजिरी तो वो जो दफ्तर की तरफ से कभी हफ्ते में 1 या 2 बार ऐसे करके लेते हैं, वो तो मानी जाती है। वही हाजिरी है सब। इम्तिहान का जो मदार है आपने इजाज़त, इम्तिहान में इजाज़त मिलेगी या नहीं वो दफ्तर की तरफ से जो हाजिरी होती है उसी का। और ऐसे भी रोजाना आपका उसमें आ रहा है कि कौन जुड़ रहे हैं कौन नहीं जुड़ रहे हैं, वो पूरा उसमें वहाँ तफसील रिकॉर्ड होती है, उसके मुताबिक उनको वो देख करके तब जो वो इजाज़त है। ये भी हजरत रिकॉर्ड होता है जो ऐसे पढ़ते हैं बगैर हाजिरी के, जो ये भी रिकॉर्ड होता है जो मतलब जिस दिन हाजिरी नहीं हुई उस दिन का भी उस रिकॉर्ड हो जाता है। सब रिकॉर्ड होता है, जो कुछ पढ़ते हैं कौन है नहीं है, तो वो लिंक क्या है तो वहाँ मौजूद रहता है। उसको फिर वो नीचे बाद में निकाल कर वो परसेंटेज निकालेंगे, जो लोग उस परसेंटेज में आएंगे उनका एग्जाम होगा, और नहीं होगा फिर टापला खाएंगे। चलो भाई, वमन इश्तरा जारियतन इल्ला हमलहा फल-बैउ फासिद। अगर किसी शख्स ने बांदी खरीदी सिवाय हमल के, कहा कि बांदी तो मैं खरीद लूंगा लेकिन उसका जो हमल है ये मुस्तस्ना है, नहीं, उसको अलग कर दिया, यानी बांदी से जो बच्चा होगा वो उसका साबित आका ले ले, वो मैं नहीं खरीद रहा, तो बैع फासिद हो जाएगी। क्यों फासिद होगी? वल अस्ल उसूल यह कि अन्नमा ला यसिह इफरादुहु बिल अक़्द ला यसिह इस्तिस्नाउ मिन अल अक़्द वल हमलु मिन हाज़ल क़बील। उसूल यह है जिस चीज को अक़्द से जुदा, जिसका अक़्द करना, मामला करना जुदा करके दुरुस्त नहीं, उनको मुस्तस्ना करना भी दुरुस्त नहीं। मसलन अगर कोई शख्स ये हमल को फरोख्त करे, खरीद ले, कहा कि इस गाय के पेट में जो बच्चा उसको मैं बेच रहा हूँ, तो उससे जुदा करके मुनफरिद करके सिर्फ बच्चा फरोख्त कर ले रहा है और गाय को नहीं, तो ये बैع जायज नहीं है। जब ये बैع जायज नहीं है तो उसको मुस्तस्ना करना भी जायज है। गाय खरीद रहे और कह रहे हैं कि हमल नहीं, तो ये इस्तिस्ना हुआ,
तो इसकी भी बै जायज। मसलन बाय का रहा मैं गाय तो दूंगा लेकिन उसका जो बच्चा होगा वो नहीं दूंगा, उसको मुस्तस्ना कर लेना ये जायज। ये उसूल है, ये इबारत याद रखें। मा ला यसिह इफरादु बिल अक्द ला यसिह इस्तिस्नाउ, जिस चीज को अक्द से अलग करके फरोख्त करना जायज नहीं, दुरुस्त नहीं, उसका अक्द से इस्तिस्ना कर लेना, उसको मुस्तस्ना कर देना भी दुरुस्त नहीं है। हमल इसी कबील में से कि जिसको मुस्तस्ना करना। चलो वलिअन्नहु दूसरी वहादा लिअन्नहु बिमंज़िलति अतराफ़िल हैवान, ये ऐसी जैसे हैवान के अतराफ है, यानी एक आदमी कोई जानवर बेच रहा है और कहा कि ये जानवर तो बेच रहा हूँ लेकिन इसकी टांग नहीं बेच रहा हूँ। अरे भाई माइक बंद कर लो यार, आवाज नहीं आ रही है, माइक बंद कर लो अल्लाह के वास्ते। सब पढ़ने के लिए नहीं पढ़ते, खोल देते हैं हाजिरी। वहाज़ा लिअन्नहु बिमंज़िलति अतराफ़िल हैवान लिइत्तिसालिहि बिही खिल्क़तन व बैउल अस्ल यतनावलुहा फलिस्तिस्नाउ यकुनु अला खिलाफ़िल मौजब फलम यसिह फयसीरु शर्तन फासिदन वल बैउ यब्तुलु बिही। ये ऐसी जैसे अतराफ हैवान यानी जानवर के अतराफ हाथ पाँव वगैरह फरोख्त करना ये जायज़ नहीं, इसलिए कि खिलकतन उसका असल जानवर के साथ इत्तिसाल है। व बैउल अस्ल यतनावलुहा, अगर जब असल जानवर को फरोख्त करेंगे तो फिर उसके अतराफ और अज्जा भी उसमें शामिल हो जाएंगे। फलिस्तिस्ना यकुनु अला खिलाफिल मौजब, और इस्तिस्ना कर देना अतराफ हैवान को ये खिलाफ हुक्म शरअ है। ला फलम ये सही नहीं और यह शर्त फासिद और बै बातिल हो जाएगी। वल बैउ यब्तुलु बिही, और इस तरह से बै करना बातिल। अब आगे करें वल किताबत वल इजारत वल रहन बिमंज़िलतिल बै। इसी तरह अगर किताबत हो, किताबत से मुराद मुकातबत करना। मसलन एक शख्स ने बांदी से कहा कि तुम बदले किताबत आजाद हो, अगर तुमने इतने पैसे मसलन 1 लाख जमा कर दिया, तुम तो आजाद हो लेकिन तुम्हारा बच्चा आजाद नहीं कर रहा, वो बच्चा मेरा रहेगा, उसको हम रखेंगे। तो इसको कहते हैं इस्तिस्ना के साथ बदले किताबत करना, गुलाम को या बांदी को मुकातब बनाना, ये भी जायज नहीं। इजारा भी जायज नहीं है और इसी तरह रहन भी जायज नहीं है। ये रहन में रख रहे हैं किसी चीज को, गाय को, और कह रहे इसका हमल नहीं, इस तरह की ये बै के दर्जे में है। लिअन्नहा तब्तुलु बिश्शुरूतिल फासिदा, ये चीजें बातिल हो जाएंगी शुरूत फासिदा से। गैर अन्नल मुफ्सिद फिल किताब मा यतमक्कनु फी सुल्बिल अक्द मिनहा, अलबत्ता मुफ्सिद किताबत में यानी मुकातब गुलाम को मुकातब बनाने में जो चीज मुफ्सिद है, मा यतमक्कनु फी सुल्बिल अक्द मिनहा, वो सुल्ब अक्द में शामिल हो, दाखिल हो। वल हिबा व सदका व निकाह व फला व सुलह तबत ला तब्तुल बिइस्तिस्नाइल हमल बल यब्तुल इस्तिस्ना लिअन्न हाज़िल उक़ूद ला तब्तुल बिश्शुरूतिल फासिदा। एक बात कह रहे हैं कि हिबा, सदका, निकाह, फला और सुलह दमिल आमद, आमदन अगर किसी ने किसी को कत्ल कर दिया, मकतूल के औलिया अगर सुलह कर लेते हैं कातिल से, तो सुलह उसको कहते हैं सुलह दमिल आमद। इसमें अगर कोई शर्त लगाई दी गई, मसलन हमल के इस्तिस्ना की,
ला तब्तुलू, तो ये चीजें, ये उकूद बातिल नहीं होते हैं हमल के इस्तिस्ना कर देने की वजह से, बल्कि इस्तिस्ना ही बातिल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर एक शख्स ने खुदा न खास्ता आमदन जुर्म किया, अब मकतूल के वारसा ने से वो मुसालहत कर रहे हैं, किसास से बच रहे हैं। अब मकतूल के वारसा से बात ये भी, ये कातिल कह रहा कि ठीक है हम ये 100 ऊँट देंगे लेकिन उसका हमल नहीं देंगे, ये 100 ऊँटनियां हैं देंगे, जो उसके पेट में बच्चे वो मेरे रहेंगे। इस्तिस्ना कर दिया, यानी ये इस्तिस्ना वाली जो शर्त है ये खुद शर्त फासिद है, ये तो खत्म हो जाएगी। अलबत्ता उनको मकतूल के वरसा को वो सारी ऊँटनियां मिल जाएंगे मा हमल के, इनका शर्त लगाना ये शर्त ही खत्म हो जाएगी, शर्त बातिल हो जाएगी। उसको कह रहे हैं कि बल यब्तुल इस्तिस्ना, इस्तिस्ना ही बातिल हो जाएगा। लअन हाज़िल उक़ूद, इसलिए कि ये सारे उक़ूद ला तब्तुलु बिशुरूतिल फासिदा, ये उक़ूद हिबा, सदका, निकाह, खुला और सुलह, दमिल अमद, ये बातिल नहीं होते शुरूत फासिदा से, बल्कि शुरूत फासिदा ही बातिल हो जाएंगे। एक आदमी ने निकाह किया और निकाह में बीवी से कहा ये कि तुमको हम इस शर्त के साथ तुमसे निकाह कर रहे हैं कि तुमको महर नहीं मिलेगा। औरत ने कहा कि ठीक मैं राजी हूं, निकाह हो गया। शौहर ने जो ये शर्त लगाई कि महर नहीं मिलेगा, ये शर्त फासिद है और ये शर्त निकाह हो जाएगा। अलबत्ता ये जो शर्त लगाई है ये शर्त भी बातिल हो जाएगी और शौहर पर महर मिस्ल वाजिब होगा, उनको महर मिस्ल देना पड़ेगा। इसी तरह औरत ने कहा कि भाई खुला कर लो, मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी। शौहर ने कहा ठीक है खुला तो कर लूंगा, लेकिन हजरतगंज की दुकान तुम्हें देना पड़ेगा। ये शर्त लगा। औरत ने मामले को देखते हुए इनसे छुटकारा हासिल करना है और वो ऐसी शर्त लगा रहा है शौहर जो महर से बहुत मुतजाविज है। महर तो मुश्किल से 25,000 था और वो जिस दुकान को वो मांग रहा है वो 25 लाख से ज्यादा का। तो शौहर की ये शर्त फासिद है। शौहर ने इस बुनियाद पर खुला दे दिया, औरत अब कह रही है कि मैं महर से ज्यादा चीज देने को नहीं। चुनांचे शौहर की शर्त फासिद हो जाएगी और औरत के जिम्मे सिर्फ बकदर महर वाजिब होगा, बाकी वाजिब नहीं होगा। इसी तरह सुलह में अगर कोई बात आई इस तरह की शर्तों की तो उसका भी वही हुक्म है। वकदल वसीयत ला तब्तुल बिही, इसी तरह वसीयत बातिल नहीं होती शर्त फासिद की वजह, लेकिन यसिहुल इस्तिस्ना, लेकिन इस्तिस्ना सही हो जाएगा। हत्ता यकून अल हमल मिरासन, यहाँ तक के हमल मिरास में चला जाएगा। वल जारियत वसीयत, और बांदी वसीयत न हो। कहने एक मसला है कि एक शख्स ने वसीयत की कि मैं ये बांदी फलां को वसीयत करता हूँ अपने भांजे को, मेरे मरने के बाद ये बांदी हमारे भांजे को मिल जाएगी, लेकिन हमल को नहीं। तो क्या ये इस्तिस्ना दुरुस्त है या नहीं? कह रहे हैं कि वसीयत भी हो जाएगी और ये हमल जो बच्चा पैदा होगा उस भांजी से ये वारिसीन का हो जाएगा। यकूनुल हमल मीरासन, हमल मीरास में चला जाएगा। वल बानियत वल जारियत वसीयत, और बांदी उनके लिए हो जाएगी जिनके लिए वसीयत की गई। लेकिन वसीयत उख्तुल मीरास,
इसलिए कि वसीयत मीरासी के का हिस्सा है, पार्ट है। वल मीरास यजरी फीमा फिल बत्नी, और मीरास जारी होती है वतन में भी। यानी अगर मान लिया जाए कि जाहिद का इंतकाल हुआ और उनकी बीवी के पेट में हमल है, अभी वो बच्चा पैदा नहीं हुआ है, दुनिया में नहीं आया कि जाहिद चला गया, और जाहिद ने बहुत सी प्रॉपर्टी छोड़ रखी है, मान लिया 3-4 महीने के बाद वो बच्चा पैदा हुआ, तो क्या वो बच्चा वारिस होगा या नहीं? हमल में रहने के बावजूद भी वो वारिस होगा, महरूम नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं कि मीरास के अहकाम और बै के वगैरह से कुछ अलग हैं। वल मीरास यजरी फीमा फिल बत्नी बखिलाफ मस्तस्ना खिदमता, बरखिलाफ उस सूरत के जबकि खिदमत को मुस्तस्ना किया। यानी बांदी तो वसीयत की, कहा कि बांदी तो मेरे भांजे के लिए वसीयत है, लेकिन ये खिदमत करेगी मेरी बीवी की, ये उसने कर ली ये बात, तो ये वसीयत खिदमत का इस्तिस्ना दुरुस्त नहीं है। लेकिन मीरास ला यजरी फिया, इसलिए कि मीरास इसमें जारी नहीं होती है। बस इसमें और भी कुछ मसाइल वो हैं चंद, जिसमें इसी तरह की शर्तें लगी हुई है, शर्त फासिद, और शर्त फासिद से बै फासिद हो जाती है, अब बसा औकात नहीं भी होगी। अब आप लोग 3 दिन आराम कीजिएगा, अंदाजा है हो सकता है कि शनिचर एतवार सोमवार को नहीं रह सकूं, लेकिन जोड़कर देख लीजिएगा, अभी तय नहीं है। और जब ना आए तो समझ जाए नहीं है, फिर यहाँ उद्यम न मचाएं।